Over to the MOC. Good morning, all. I think am I loud and clear? Yes, Megha. Yeah. Good morning, all. Hope you all are having a good time. And today is our first speaker meet for the year 21-22. And our today's session is on the topic digital marketing during and post lockdown. And we have a very renowned personality between us, Mr. Rohit Gupta. Now, may I request President Rotarian Ritesh Chandak for his opening remarks? Good morning, all. Thank you, Megha. I welcome our distinguished guest, Mr. Rohit Gupta, sir, my fellow Rotarian, Rotarians, and all my invited guests. I do agree this is the first meet of year 21-22. Nowadays, in every industry, digital platform is essential. This speaker meet has been organized for modernizing our IT system and to understand the related process for best of our results. I firmly believe session will definitely help you to contribute in your substantial growth in your business ventures. Thank you. Thanks a lot. Back to MOC. Thank you, sir. Now I will introduce you. I'll introduce all to our today's speaker, Mr. Rohit Gupta. He is the owner of Atrex Solutions Nagpur. On personal front, he is a perfect biryani of sales, passionate at heart, and a digital marketer by brain. To garnish it further, he is an engineering graduate from with MDP from IIM Shillong. Not to miss, he is a hardcore foodie, and it is not much impacted by this lockdown, as this has turned him to explore the hidden chef in him. He is an ex-Infoscian turned into entrepreneur and has been brought back to the small city of Oranges by the love of home and family. With the grace of technology, the world has become smaller than a dot, and he feels even more happy and satisfied on the shifting back to the hometown. Challenging sales project excites him for the deeper involvement and getting through to achieve the target. It enhances his focus on projects and motivates him to drive 24/7. He strongly believes that the digital marketing is the future of marketing and is going to take 80% to 90% of the marketing in some time soon, as it is economical and has a bigger reach than the conventional marketing. This is the more liked and preferred marketing tool by most of the business owners to grow potentially. Now I would like Mr. Rohit Gupta to take over the meeting, and I request all participants again to put your question answer in the chat box only. We will try to take all the question at the end of session, and I also request all the participants to be on mute for the smooth running of the session. So good morning, everyone. Am I audible? Yes, sir. Yeah. So thank you, Megha, for a good introduction. Thank you, Rohit, Rishabh, and all the other members for giving me this opportunity to speak about digital marketing in your club, in your Rotary Club. So I'll quickly take you through the agenda of this today's meeting. So I'll try to wind up the entire meeting in around 45 minutes, the presentation in around 45 minutes. And thereafter, we can take the question and answers, whatever the participants have doubt around the digital marketing related things that can be taken up after this 45 minutes of session. So this is the agenda of the meeting. As Megha introduced me, that was the first slide around the presentation. So I'll take you through digital marketing. There is a golden rule around that, which is when, where, what, who, and how. अगर आपको as a individual
आपका बिजनेस में या आपके रिलेटेड जो भी आप काम करते हैं उसमें अगर आपको ये 5 क्वेश्चंस के सवालों के जवाब पता है तो आप ऑब्वियसली डिजिटल मार्केटिंग को बहुत अच्छे से कर सकते हैं खुद भी। और अगर आप खुद नहीं करते हैं, इंटरनली करते हैं या किसी को आउटसोर्स करते हैं, तो अगर आपको ये 5 क्वेश्चंस के जवाब पता रहेंगे तो देन यू कैन derive the best results out of digital marketing. So we call it as the golden rule in digital marketing. So I'll take you through that first. फिर इसमें what is what, जो आपका थर्ड पॉइंट है when where what में, तो वो what क्या होता है that I'll take you through. What में basically push and pull kind of terminologies है. Push and pull का मतलब होता है डिजिटल मार्केटिंग में 2 तरीके के एक्टिविटीज होती है, एक पुश मार्केटिंग होता है और एक पुल मार्केटिंग होता है। किसी भी मार्केटिंग का जो आउटकम होता है वो एक फनल आउटकम होता है, तो आई विल टेक यू थ्रू दैट। तो फनल आउटकम में जैसे आपका मार्केटिंग जब अपन करते हैं तो उसके बाद के स्टेप्स क्या होते हैं, that I have quickly covered in a slide. There are a few case studies which we have been doing. So I have tried and elaborated around 2 case studies. One is around education and the second is around real estate. So basically ये जो case studies हैं ये आपके individual businesses में भी आप case studies में the methodology would remain same, but आपके individual businesses के हिसाब से उसमें numbers change होंगे। इसमें जैसे आपके अभी participants में बहुत सारे लोग products में होंगे। सो प्रोडक्ट में बेसिकली हम लोग ई कॉमर्स में आप लोग अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। बेसिकली जो फ्लिपकार्ट, अमेजोन ये मार्केट प्लेसेस होते हैं, तो वहाँ पे आपके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और उसको कैसे किया जाए, वो सारा चीजें आई विल टेक यू थ्रू। एंड देयर आर सम स्ट्रेटेजिक ऑब्जर्वेशंस व्हिच वी हैव बीन इनटू द ई-कॉमर्स स्पेस फॉर ऑलमोस्ट अराउंड 5 years नाउ। सो उसके अराउंड देयर आर अ फ्यू ऑब्जर्वेशंस व्हिच वी विल शेयर एंड देन वी कैन हैव द आंसर। सो दिस इज द ब्रॉड एजेंडा of today's session. So as Megha mentioned about me, I am a digital marketing we run a digital marketing agency for around 12 years now. I'm a 2007 pass out Ramdev Baba, and thereafter did so we have been into this digital marketing services for almost 12 years now. It's a full-time team of around 16 people. And we have been doing digital marketing and web related assignments. So this is so Megha already introduced about me. I'm also an ex-Infosys. I was there working with Infosys for a year and thereafter started with this digital marketing agency. So we started in 2009. We started with this agency. So this is the first slide which broadly speaks about the overall digital marketing as a whole in one slide. So basically आप देखेंगे तो जैसे मैंने मार्केटिंग को एलैबोरेट किया है 2 एक्टिविटीज में, एक आपका डिजिटल मार्केटिंग हो गया और एक दूसरा आपका कन्वेंशनल एडवर्टाइजमेंट हो गया। सो अगर आप कन्वेंशनल एडवर्टाइजमेंट देखेंगे तो वी हैव बीन कन्वेंशनल में जैसे आपका न्यूज़पेपर्स, होर्डिंग, रेडियो, टेलीविजन इवेंट्स, ये तरीके के मार्केटिंग इनिशिएटिव्स होते हैं जो ऑब्वियसली इतने सालों से चले आ रहे हैं और आज भी चल रहे हैं। सो आप जैसे आपके कंपनी के बारे में या आपने जो भी आपका प्रोडक्ट सर्विसेज रहेगा उसके बारे में आप ये मीडिया ऑफ एडवर्टाइजमेंट यूज करते आए हैं कन्वेंशनली अभी तक, जैसे न्यूज़पेपर, होर्डिंग्स, रेडियो, टेलीविजन एंड इवेंट्स। अभी जैसे जो आज का टॉपिक है वो डिजिटल मार्केटिंग है। तो आप जैसे जो डिजिटल मार्केटिंग में एज आई टोल्ड यू कि देयर आर 5, दिस इज द गोल्डन रूल अबाउट डिजिटल मार्केटिंग। अगर आपको ये 5 सवालों के जवाब पता है तो आप डिजिटल मार्केटिंग इनिशिएटिव्स को अपने कंपनी के लिए खुद या किसी से करवाएंगे तो आपको अगर ये 5 सवाल के जवाब पता है तो आप उसको अच्छे से करा पाएंगे। मैंने सेशन में आई हैव ट्राइड एंड केप्ट इट बिट नॉन टेक्निकल जिससे कि एवरीबॉडी कैन अंडरस्टैंड अबाउट इट। सो I'll cover this 5 क्वेश्चंस एंड इसके बारे में डिटेल में हम किस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग में यूज कर सकते हैं। सो कमिंग टू द फर्स्ट पॉइंट, व्हेन जैसे अगर आपका फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर आप एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं तो आपको ये व्हेन का सवाल का जवाब जैसे आपके लिए जून जुलाई सेशन रहता है, ऑब्वियसली अभी तो नहीं है बट लॉकडाउन के पहले जैसे आपका जो सीजन टाइम रहता था वो या तो सीजनल रहता है या ऑल राउंड द ईयर रहता है। जैसे अगर लेट्स से रियल एस्टेट है या हॉस्पिटल्स है या लेट्स से फर्नीचर का कोई दुकान है तो इनके लिए साल भर दे हैव देयर मार्केट। सो बेसिकली व्हेन का जवाब आपका सीजनल या ऑल राउंड द ईयर इनमें से कोई हो सकता है। सीजनल में इट कैन बी मंथ्स, जैसे
रियल एस्टेट में इट कैन बी फेस्टिव मंथ्स में ज्यादा होते हैं, बट साल भर भी लोग परचेज करते हैं. सो दिस इज द आंसर टू योर. आप अपना नोटपैड में आप अपने लिए व्हेन, वेयर, हु, हाउ एंड व्हाट अकॉर्डिंग टू योर इंडस्ट्री लिख सकते हैं. सो व्हेन में जैसे अगर आपका कुछ सीजन में होता है बिजनेस या ऑल राउंड द ईयर आपका बिजनेस रहता है, तो दैट कैन बी द आंसर टू योर व्हेन. वेयर में डिजिटल मार्केटिंग में देयर इज अ वेरी गुड थिंग व्हिच नॉट द कन्वेंशनल एडवर्टाइजमेंट्स हैव. आप इसमें वेयर में आप ज्योग्राफी डिफाइन कर सकते हैं. ज्योग्राफी में लेट्स से अगर आपका फोकस है कि आप आउटसाइड इंडिया कहीं पे टारगेट करना चाहते हैं, तो आप कंट्री स्पेसिफाई कर सकते हैं, सिटी स्पेसिफाई कर सकते हैं. एंड डिजिटल मार्केटिंग में एक और एडवांटेज होता है कि आप एरियाज भी डिफाइन कर सकते हैं. तो लेट्स से अगर किसी का रेस्टोरेंट है यहाँ पे एंड दे वांट मेरे रेस्टोरेंट में लेट्स से धर्मपेट एरिया के अराउंड 5 किलोमीटर के अराउंड ही लोग आए, सो आप डिजिटल मार्केटिंग में देयर इज अ फीचर जहाँ पे आप जियो टारगेटिंग करके सिर्फ धर्मपेट एरिया से 5 किलोमीटर के रेडियस में अपना एडवर्टीजमेंट शो कर सकते हैं. या लेट्स से रियल एस्टेट है जो फॉर एग्जांपल काटोल रोड पे अगर किसी का फ्रेंड्स कॉलोनी में कोई प्रोजेक्ट है एंड दे नो कि हमारे इस प्रोजेक्ट में 5 किलोमीटर से ही लोग आएंगे, तो आप उसमें डिजिटल मार्केटिंग में ये फीचर रहता है कि आप वो टारगेट कर सकते हैं. लेट्स से अगर किसी का हॉस्पिटल है एंड दे नो कि हमारे पास में एमपी से ज्यादा कस्टमर्स आते हैं या एमपी से ज्यादा पेशेंट्स आते हैं, सो यू कैन फिगर दैट आउट एज वेल. एंड डिजिटल मार्केटिंग में हम लोगों के मतलब digital marketing as a feature allows you to target on the country level, on the city level and also on the area level. So आपके इंडस्ट्री के रिलेटेड आपका क्या वेयर का आंसर होगा वो आप ऑब्वियसली नोट डाउन कर सकते हैं. एंड दैट्स हाउ यू कैन डू इट. लाइक जैसे अगर आपको फॉर एग्जांपल कोई रेस्टोरेंट है और वो सिर्फ टारगेट करना चाहते हैं कि हम सिर्फ धर्मपेट के लोगों को बुलाना चाहते हैं, सिर्फ रामदासपेट के लोगों को बुलाना चाहते हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग में स्पेसिफिकली फेसबुक में ये फीचर होता है, जहाँ पे गूगल में भी ये फीचर होता है, जहाँ पे आप एक एरिया में अपने एडवर्टीजमेंट दिखा सकते हैं बस. तो उस एरिया में जो लोग रहेंगे उनको ही आपका एड्स दिखेगा, उसके अलावा दूसरे एरियाज में नहीं दिखेगा. सो बेसिकली अगर आपको आपके इंडस्ट्री के रिलेवेंट वेयर क्या है वो पता होना चाहिए. अभी जैसे डिजिटल मार्केटिंग में आपका नेक्स्ट इज द हु का क्वेश्चन का आंसर आपका होता है कि आपका जो कस्टमर है उसका डेमोग्राफिक्स क्या है. डेमोग्राफिक्स से मेरा मतलब है उसका एज क्या है, उसका सेक्स क्या है, वो कौन से एरिया में रहता है, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या हो सकता है. ये सब आपको अगर पता है, सो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप स्पेसिफिकली आपके डेमोग्राफिक और ऑक्यूपेशन और इंटरेस्ट पे भी टारगेट कर सकते हैं. मैं इसमें एग्जांपल के तौर में लेता हूँ. जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिसका ऑडियंस है ये IIT JEE के लेट्स से क्लासेस रन करते हैं, तो यू नो कि आपका ऑडियंस जो है वो 15 इयर्स में 10th हो जाता है, तो 16 इयर्स से लेके 18 इयर्स तक का उसका एज ग्रुप है. और आप एक अजम्पशन इसमें बिल्ड कर सकते हैं कि आपका जो ये ऑडियंस है ये इनके पेरेंट्स लेट्स से अराउंड 40 से लेके 50 इयर्स के बीच में होंगे. तो आपके डेमोग्राफिक्स अगर आपको पता है आपके कस्टमर में, सो डिजिटल मार्केटिंग अलाउज यू टू रीच आउट टू योर स्पेसिफिक कस्टमर्स. दूसरे एग्जांपल में मैं आपको एग्जांपल दूं. अगर लेट्स से कोई यहाँ पे ब्यूटी बिजनेस में है, ब्यूटी पार्लर में है एंड या ब्यूटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स में है, सो दे नो दैट देयर पीपल हु वुड ऑप्ट फॉर देयर सर्विसेज आर फीमेल्स जिसका एज ग्रुप लेट्स से 18 to 24 इयर्स है. सो आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू सिर्फ स्पेसिफिकली फीमेल्स इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 24 को अपना कंटेंट दिखा सकते हैं. लेट्स से इसमें जैसे बहुत सारे लोग B2B बिजनेस वाले होंगे, जैसे जो अपना प्रोडक्ट्स किसी को बेचना चाहते हैं, तो इसमें ऑक्यूपेशन में आप जैसे इसमें टारगेट लिंक्डइन एज अ फीचर, जहाँ पे आप अपने ऑक्यूपेशन में जैसे परचेज मैनेजर्स हैं आपके रिलेटेड इंडस्ट्री के, तो वहाँ पे आप अपना एडवर्टीजमेंट दिखा सकते हैं. तो डेमोग्राफिक्स के बाद में ऑक्यूपेशन को भी आप टारगेट कर सकते हैं थ्रू डिजिटल मार्केटिंग. अभी बेसिकली जब आपको व्हेन, वेयर, हु ये क्वेश्चंस का जवाब आपके वर्क के रिलेटेड अगर पता है, तो द नेक्स्ट थिंग कम्स इज हाउ. कि आप ये सब चीजें तो आपको पता चल गया कि आपका कस्टमर कौन है, उसको कब टारगेट करना है, कौन सी सिटी में रहता है, वो क्या करता है, ये अगर आपको पता है तो आप इसको किस तरीके से रीच आउट कर सकते हैं. तो डिजिटल मार्केटिंग है ब्रॉडली या फॉर दैट मैटर किसी भी
मार्केटिंग में ब्रॉडली 3 तरीके की कंटेंट डेवलपमेंट होता है जिसके थ्रू आप लोगों को रीच आउट कर सकते हैं, विच कैन बी इन द फॉर्मेट ऑफ कंटेंट, मतलब जो आप आपके बारे में कंटेंट लिखेंगे. इट कैन बी क्रिएटिव, जैसे आप अभी बहुत सारे लोग अपने बिजनेस के बारे में क्रिएटिव्स रेगुलरली बनाते हैं. एंड देयर कैन बी वीडियोज. सो बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग में ये तीनों फॉर्मेट ऑफ कंटेंट्स आप बिल्ड कर सकते हैं. ये कंटेंट बिल्ड करना इज अ ऑनगोइंग टास्क इन द डिजिटल मार्केटिंग एक्टिविटी. तो आपको जब ये व्हेन वेयर हु पता चला तो फिर आप उसके बाद में आप इनको रीच आउट कैसे करेंगे, या कंटेंट बनाएंगे अपने कंपनी के रिलेटेड, या क्रिएटिव्स बनाएंगे. क्रिएटिव्स का मतलब मेरा जो इमेजेस है वो है. वीडियोस मतलब आप अपने रिलेटेड इंडस्ट्री है जो वर्क है उसके अराउंड वीडियोस बिल्ड कर सकते हैं. अभी आपको व्हेन वेयर हु एंड हाउ ये पता चल गया है, तो आपको ये कैसे रीच आउट करेंगे डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू. तो दैट इज व्हाट वी कॉल एज व्हाट. व्हाट में बेसिकली 2 तरीके के डिजिटल मार्केटिंग इनिशिएटिव्स होते हैं. एक होता है पुश फॉर्मेट ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड एक होता है पुल फॉर्मेट ऑफ एडवर्टीजमेंट. ये वाला जो पॉइंट है मैं इसको आगे की स्लाइड में और इलैबोरेट करूंगा, जिससे कि आपको और डिटेल में ये समझ में आ जाएगा. बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग में आपको ये जब 4 पॉइंट्स के बारे में, 4 व्हेन वेयर हु एंड हाउ अगर आपको पता है, तो अब इसको हम डिजिटल मार्केटिंग के टूल्स यूज करके वी वुड ट्राई एंड रीच आउट टू आवर ऑडियंस. ये जब हम ऑडियंस को अपने जब रीच आउट करेंगे तो उसका आउटकम क्या होता है वो भी मैंने आगे के स्लाइड में कवर किया है. सो व्हाट में डिजिटल मार्केटिंग में 2 तरीके के ये 2 टर्मिनोलॉजीज हैं. ये कंसेप्ट से आप बोलिए कि इसमें पुश फॉर्मेट एंड पुल फॉर्मेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट होता है. पुश फॉर्मेट का मतलब होता है जिसमें हम अपना कंटेंट एंड क्रिएटिव्स अपने टारगेट ऑडियंस को एक पुश फॉर्मेट में कंटेंट दिखा रहे हैं. जैसे कि अगर आप देखेंगे कन्वेंशनली आप लोग जो भी एडवर्टीजमेंट करते थे, जो न्यूज़पेपर्स रहता था, होर्डिंग्स रहता था, रेडियो रहता था, इसमें आप लोग क्या करते थे कि आप अपना टारगेट ऑडियंस को अपने बारे में, अपनी कंपनी के बारे में कंटेंट पुश करते थे, मतलब उनको दिखाते थे, और उसको दिखाने के बाद में ऑटोमेटिकली उसमें से जो लोग इंटरेस्टेड रहते थे वो आपको इंक्वायरीज देते थे. सो वैसे ही डिजिटल मार्केटिंग में देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड एज पुश मार्केटिंग एंड देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड एज पुल मार्केटिंग. पुश मार्केटिंग में जैसे बेसिकली इसमें पुश मार्केटिंग में आपका फेसबुक, लिंक्डइन, व्हाट्सएप, एसएमएस, ये सारा पुश फॉर्मेट ऑफ बहुत मजा आया, बहुत मजा आया. मैंने बोली ना, आने के बाद तो ऐसा लगेगा चलो जल्दी किया. तो जो पुश फॉर्मेट ऑफ एडवर्टीजमेंट में आप अपना बेसिकली कंटेंट जो है वो अपने टारगेट ऑडियंस को पुश कर सकते हैं. एंड ये पुश करने के लिए आपको व्हेन वेयर हु एंड हाउ अगर समझ में आया होगा तो ऑटोमेटिकली आप ये जब कंटेंट पुश करते हैं तो उसमें से आपका जो इंटरेस्टेड कस्टमर्स रहते हैं वो ऑटोमेटिकली आपको इंक्वायरी देते हैं. फुल फॉर्मेट ऑफ एडवर्टीजमेंट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट. अगर आपको ये समझ में आएगा तो इट इज वेरी रिलेवेंट फॉर अ लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज. फुल फॉर्मेट ऑफ एडवर्टीजमेंट से मेरा मतलब ऐसा है कि अगर आपका कोई कंपनी है जिसके बारे में अगर कोई सर्च कर रहा है गूगल पे एंड अगर आप वहां प्रेजेंट है, सो दैट इज कॉल्ड एज फुल फॉर्मेट ऑफ एडवर्टीजमेंट. ये मैंने जैसे व्हाट इज व्हाट को कवर किया है. सो अगर आप फुल फॉर्मेट ऑफ एडवर्टीजमेंट देखेंगे तो गूगल पे आप जो भी एडवर्टीजमेंट्स करते हैं या गूगल पे जो भी सर्च करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द फुल फॉर्मेट ऑफ एडवर्टीजमेंट. इसका मतलब ये है कि जहां कस्टमर आपके बारे में आपको ढूंढ रहा है एंड अगर आप वहां प्रेजेंट हैं तो आपको वो ऑटोमेटिकली आपको राइट कस्टमर को बारे में राइट कस्टमर के पास आप पहुंच सकते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई हॉस्पिटल है एंड अगर किसी को हॉस्पिटल में एडमिट होना है या हॉस्पिटल में किसी कार्डियक सर्जन की रिक्वायरमेंट है, तो ही माइट नॉट टाइप, ही वुड टाइप सम कीवर्ड्स ऑन गूगल एंड जब ये कीवर्ड्स वो टाइप करता है तो उसमें उसको कुछ रिजल्ट्स दिखते हैं. जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई टाइप करे बेस्ट कार्डियक सर्जन इन नागपुर और वहां पे उसको अगर कुछ रिजल्ट दिख रहे हैं, तो आपको ये मालूम है कि ये जब कोई कस्टमर आपके बारे में कार्डियक सर्जन इन नागपुर टाइप कर रहा है एंड अगर आप वहां प्रेजेंट है तो आपकी प्रोबेबिलिटी है कि कस्टमर जो है वो आपके बारे में ढूंढ रहे हैं और आप वहां पे प्रेजेंट हैं तो आपको इंक्वायरी ज्यादा आसानी से मिलेगी. ऋषभ, if we can open the people and if they have some doubts around when, where, who, how and what, we can quickly take up 5 minutes of question and answer now also. जिससे अगर ये कंसेप्ट अगर समझ गया, नहीं समझा है या इसमें कुछ डाउट है तो we can I would request the participants to raise their hands so that we can take their questions one by one.
आपको अगर सिर्फ ये स्लाइड में व्हेन, वेयर, हु, हाउ एंड व्हाट में अगर कुछ मतलब भावनाच झाली आणि लगेचच क्वेश्चन आन्सर सुरू झाले. पहिले तू तर अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में आया है सबको, तो उसके बाद आगे अपन आगे की स्लाइड्स में जाएंगे तो वो आपको Bhargavi, please go ahead. गुड मॉर्निंग. यस मैम बताइए. मुझे ये पूछना था कि जब आप फेसबुक या लिंक्डइन या व्हाट्सएप या ये यूज करते हैं वॉट में पुश टेक्नोलॉजी, तो पीपल आजकल क्या कर रहे हैं भैया, नॉट टू सी द स्किल्स मार्क नहीं करते कि व्हाट ग्रेड ऑफ पर्सन यू आर, बट ओनली दे फोकस ऑन द कॉस्ट. सो व्हाट इज द थिंग दैट वी हैव टू डू? आपका क्या बिजनेस है अगर आप बताएंगे तो मैं उसको थोड़ा और अच्छे से एलैबोरेट कर पाऊंगा. लाइक आई एम प्रोफेशनली अ डॉक्टर. ओके. तो आपके लिए जैसे आप अगर डॉक्टर हैं और अगर आप किस किस स्पेशलिटी में आप डॉक्टर हैं मैम? मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और लैप्रोस्कोपिक और टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है मेरा. ओके. तो मैम आपके लिए जैसे जो पुश फॉर्मेट ऑफ एडवर्टीजमेंट है ना, वो कई बार मतलब इट इज नॉट वेरी रेलेवेंट फॉर यू, बिकॉज आपको वहां से ब्रांडिंग तो जनरेट होगा, बट आपको ये नहीं पता रहेगा कि कौन सा कस्टमर ऐसा है जिसको आपकी सर्विसेज की जरूरत है. वेराज अगर आप फुल फॉर्मेट ऑफ एडवर्टीजमेंट में जाएंगे तो आपको वहां से ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे रादर देन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम से. बिकॉज अगर आप फुल फॉर्मेट ऑफ एडवर्टीजमेंट में जाएंगे तो मैंने इसको एलाबरेट किया है आगे कि फुल फॉर्मेट में जैसे जब कोई कस्टमर आपके बारे में ढूंढ रहा है गूगल पे, तो आपको चांसेस वहां से ज्यादा हैं कि आपको बिजनेस ज्यादा अच्छा मिलेगा, बिकॉज वो कस्टमर ऑलरेडी आपकी सर्विसेज के बारे में सर्च कर रहे हैं. सो पीपल कैन सर्च अराउंड अ लॉट ऑफ कीवर्ड्स अराउंड योर इंडस्ट्री, जैसे गायनाकोलॉजिस्ट इन नागपुर, टेस्ट ट्यूब बेबीज इन नागपुर, टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर्स इन नागपुर, बेस्ट गायनाकोलॉजिस्ट इन नागपुर. तो वहां पे जब आपके बारे में कोई सर्च करेगा और अगर आप वहां प्रेजेंट हैं तो वहां से आपको बिजनेस ज्यादा अच्छा मिलेगा. पुश फॉर्मेट ऑफ एडवर्टीजमेंट में आप जैसे लेट्स से एक एज ग्रुप को टारगेट कर सकते हैं, लेकिन यू डोंट नो इफ दे आर लुकिंग फॉर योर सर्विस और नॉट. तो वहां से आपको ब्रांडिंग मिल सकते हैं, लेकिन वहां से आपको जो इंक्वायरीज मिलेंगी वो बहुत जेन्युइन नहीं मिलेंगी. सो दैट्स वाई आपको शायद वहां से जो आपने सवाल पूछा वो आपको आउटपुट वहां से सही नहीं मिल रहा है. Sir, I want to ask, like, basically the pull technology is based on customers' review? पुल टेक्नोलॉजी इज बेस्ड ऑन आपका कस्टमर आपके बारे में जो ढूंढ रहा है. जैसे मैं अगर आपको यहाँ पे बताऊं तो मैंने एक एग्जांपल दिया है हॉस्पिटल्स का. आपके मैम आपका क्या बिजनेस है अगर आप बताएंगे तो? Sir, I am a chartered accountant. ओके. सो आपके जैसे मैंने ये जैसे पुल के लिए एक ये स्लाइड किया है जिसमें कि आपके इंडस्ट्री के रिलेटेड people can search for varied keywords, like there can be brand related keywords. मैंने जैसे इसमें एक एग्जांपल किंग्सवे हॉस्पिटल का दिया है. सो अगर एक हॉस्पिटल है तो उसमें ब्रांड रिलेटेड कीवर्ड्स हो सकते हैं, which can be किंग्सवे हॉस्पिटल, किंग्सवे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल. There can be general keywords like best hospital, knee replacement hospitals, and बहुत सारे और हो सकते हैं. There can be category related keywords, which can be full body diagnosis, CT scan, heart specialty, neuro hospital. So ये category मतलब diseases के relevant हो गए. Geo targeting keywords, which can be in Nagpur relevant keywords, and there can be competitor keywords as well, which can be Alexis, Mediterranean, etc. तो आपके इंडस्ट्री के relevant similarly जैसे मैम ने जो पिछला क्वेश्चन पूछा था कि गायनाकोलॉजिस्ट के रिलेटेड कीवर्ड्स रहेंगे तो देयर कैन बी ब्रांड रिलेटेड कीवर्ड्स, देयर कैन बी जनरल कीवर्ड्स, देयर कैन बी कैटेगरी रिलेटेड कीवर्ड्स, लाइक जैसे आपने लैप्रोस्कोपिक सर्जरी बताया है या गायनाकोलॉजी, तो सो देयर कैन बी वेरिड कैटेगरी रिलेटेड कीवर्ड्स. देयर कैन बी जियो टारगेटिंग कीवर्ड्स, जैसे कि अगर आपके लेट्स से पेशेंट्स आप चाहते हैं कि एमपी से भी आए, महाराष्ट्र से भी आए, तो आपके वो इन नागपुर के बदले इन रायपुर, इन छत्तीसगढ़ इस तरीके से होते हैं. एंड देयर कैन बी कंपटीशन कीवर्ड्स आल्सो. सो बेसिकली गूगल में क्या होता है, जब आप ये कीवर्ड्स पे अपना सर्च करते हैं या अगर आपका वेबसाइट वहाँ प्रेजेंट है तो ऑटोमेटिकली जब कोई ये कीवर्ड सर्च कर रहा है और अगर आप वहाँ प्रेजेंट हैं तो ऑटोमेटिकली आपको इंक्वायरीज जनरेट होती है, और ये इंक्वायरीज कन्वर्ट भी बहुत अच्छे से होती है क्योंकि यू ऑलरेडी नो दैट द कस्टमर्स इंटेंट टू बाय इज देयर. मतलब वो सर्च कर रहा है तो उसको ये सर्विसेज की जरूरत है. जैसे आपके मेगा मैम आपके रिलेटेड ऐसा हो सकता है कि अगर कोई सर्च कर रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी सर्विसेज इन नागपुर, जीएसटी फाइलिंग इन नागपुर, होम लोन सर्विस प्रोवाइडर्स इन नागपुर,
तो आपके कैटेगरी रिलेटेड या इंडस्ट्री रिलेटेड अगर कोई सर्च करेगा और अगर आप वहाँ प्रेजेंट हैं तो आपको ऑटोमेटिकली इंक्वायरीज ज़्यादा जेन्युइन मिलेंगी, क्योंकि वो ऑलरेडी ये चीज़ों के लिए सर्च कर रहा है. I hope I have answered. Yes, sir. Thank you, sir. Rotarian Kumar Zilpewar has a question. थैंक यू ऋषभ. रोहित जी, एक पूछना ये था. Yeah. आपके बात करने से ऐसा लग रहा है कि पुश मार्केटिंग इज समथिंग रिलेटेड टू ब्रांडिंग. Yeah. पुल मार्केटिंग इज समथिंग रिलेटेड टू द एक्चुअल इंक्वायरी. एम आई राइट? So not necessarily हर सेक्टर में डिपेंड करता है. जैसे अगर आप मैं एजुकेशन की बात करूं तो एजुकेशन में पुश फॉर्मेट वर्क्स रियली वेल. मेजरली मैं ऐसा बोलूंगा B2C बिजनेसेस के लिए पुश फॉर्मेट एडवर्टाइजमेंट वर्क्स वेरी वेल. एंड स्पेसिफिकली उसमें एजुकेशन बोलो या रियल एस्टेट बोलो. एजुकेशन एज अ सेक्टर, रियल एस्टेट एज अ सेक्टर. तो एजुकेशन, रियल एस्टेट, रिटेल, ये सारे सेक्टर्स के लिए पुश फॉर्मेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट वर्क्स वेरी वेल. Whereas B2B businesses के related pull format of advertisement works well, and even the other sectors also pull format works really well because आपको वहाँ से customer का intent to buy already है, that's why he's searching, and if you are present there तो automatically आपको business ज़्यादा अच्छा मिलेगा. Great, thank you Rohit. Rohit Bhaiya has a question. Rohit Chandak. Rohit, one of the thing I wanted to ask you about the push marketing or push digital marketing. Yeah. See, whenever we get pull marketing. I'm so sorry for that. Whenever we try to get into pull marketing kind of thing, we actually go against bigger giant companies or bigger giant competitors. Yeah. And when we have competition from people like those, then it becomes a very capital intensive program to do it for a MSME. Yeah. So how a small company can survive in pull marketing against larger, very giant companies? So just to give you an example, I'm into a process control instrumentation market, and I would say I'm a very small player in a very big competitive world, and I compete with most of the multinational companies. So how the pull marketing is going to make me survive in very capital intensive marketing programs? Actually, a lot of businesses, मतलब बहुत सारे businesses को खुद भी ये पता नहीं रहता है कि उनका customer acquisition cost कितना रहेगा. So basically we have been working very closely in real estate and education as sectors. आपके सेक्टर के रिलेवेंट भी उसमें कुछ ना कुछ इंडस्ट्री डायनामिक्स होते होंगे या इंडस्ट्री बेंचमार्क्स होता होगा, जिसमें आपका एक कस्टमर एक्विजिशन जो कॉस्ट होता है वो थोड़ा सा प्री डिफाइंड होता है या एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड होता है. जैसे अगर मैं रियल एस्टेट की बात करूं तो रियल एस्टेट में यूजुअली 4 to 5% कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट होता है. मतलब अगर आपको एक कस्टमर एक्वायर करना है तो एंड आपका प्रॉपर्टी लेट से 30 लाख रुपीस का है, so to actually acquire that customer you might require around 1 lakh to 1.5 lakh rupees of advertisement spend and sales team का effort पकड़ के वो around 4 to 5% के आसपास कॉस्ट होता है. So in education as a sector, lot of times around 10% तक भी marketing customer acquisition cost जाता है. So वैसे ही आपका जो B2B business जो आप बोल रहे हैं उसमें आपके इंडस्ट्री के रिलेवेंट कुछ ना कुछ एक कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट होगा जो डिफाइंड होता होगा. आपके लिए रोहित जी, जैसे अगर आप सिर्फ गूगल एड्स या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एज अ प्रोसेस को करेंगे तो उसका चांसेस है कि आपका इंक्वायरीज तो आपको जनरेट डेफिनेटली वहां से हो जाएंगी, बट वो फिर इंक्वायरी से क्लोजर्स इज अगेन अ सेपरेट थ्रेड. मतलब आपका वो, बिकॉज आप जब मल्टीनेशनल से कम्पीट कर रहे हैं तो आप उसमें क्या बेहतर वैल्यू एडिशन या आपका यूएसपी क्या है वो जब तक आपको पता, मतलब ऑब्वियसली पता रहेगा, but definitely lead generation is one thing. So any marketing, digital marketing हो या conventional marketing हो, ये सिर्फ आपको inquiry generation तक के स्टेज तक लेके जा सकते हैं. आपको inquiry तो आ जाएगी, but inquiry to sales is another journey in itself. So आपको अभी initially, मतलब जैसे सिर्फ जब आपका कस्टमर आपके बारे में ढूंढ रहा है या आपके relevant इंडस्ट्री के बारे में ढूंढ रहा है तो आप एटलीस्ट वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे तो आपको एटलीस्ट एक कन्वर्सेशन स्टार्ट का मौका तो मिल जाएगा.
फिर वो क्लोज कैसे होगा वो एक अलग मतलब आपका यूएसपी के ऊपर, आपके प्रोडक्ट के ऊपर, आपका क्या वैल्यू एडिशन है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। बट डेफिनेटली टू रेज दैट फर्स्ट इंक्वायरीज आपके लिए मतलब मे बी जैसे आपके लिए पुश फॉर्मेट ऑफ एडवर्टीजमेंट में भी लिंक्डइन मार्केटिंग माइट वर्क वेरी वेल। मेरे को आपके इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा कुछ पता है, बट उसमें लिंक्डइन एड्स माइट वर्क वेल फॉर यू बिकॉज जैसे आपको परचेज मैनेजर्स of whatever Yeah, industry. Rohit, definitely the push marketing is working out for us, especially through LinkedIn, because we do have a group on LinkedIn Yeah, having members of more than 12,000 Right. people across the globe. right. So that is helping us. But whenever जब हम pull marketing में जाते हैं, so हम एक कोई keyword डालते हैं. हाँ, So once we put the keyword, हमारा multinational company जो है वो उस keyword को पकड़ के और आगे निकल जाता है. हाँ, मतलब वहाँ पे वो कॉस्ट उसका बढ़ते जाता है एड्स का हाँ, भी। so वो पंप इन करता है पैसा, हम पंप इन नहीं कर पाते हैं. आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज एन ऑर्गेनिक वे टू डू इट, वेरन आपका एक बार मतलब पहले 3 रिजल्ट्स के नीचे आपके रिजल्ट्स दिखना शुरू होंगे अगर आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एज एन एक्टिविटी करते हैं। तो इसमें आपका ऑनगोइंग कॉस्ट मतलब एडवर्टीजमेंट के बदले आपके नीचे के रिजल्ट्स में आपका नाम आता है। बट इवन इफ यू आर प्रेजेंट देयर तो एटलीस्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इंक्वायरीज इज देयर। Yeah, but that's a high cost. That's the whole point. हाँ, so actually वही customer acquisition cost in B2B companies can be high to start with, but आपको ये ongoing usually इसका जो calculation का process होता है इसमें lifetime value of the customers निकाला जाता है, जिसमें कि मतलब आपको समझिए आज कोई कस्टमर acquire हुआ और आपसे वो let's say 5 साल तक business करता रहा तो फिर आपको वो cost शायद justify लगे। Okay. Thank you, Rohit. I appreciate that. Rohit Bhaiya, can we just take one last question from Rotarian Atul Bhaiya, and then we proceed further? And members, we do not have the chat option working due to a technical glitch. I would request you to wait for another round of question and answer as and when Rohit Bhaiya intervenes. We will have the question answer rounds. So Rohit Bhaiya, can we have this one last question? Yeah. Atul Bhaiya, Hi Rohit. Hello. Good to see you after a long time. कैसे हैं? अच्छा हूँ सर, बताइए। Okay. All right. Further to, I mean, my business is quite similar to Rohit Chandak's business. Yeah. So I have a, a related question. Suppose I want to ensure the high viewership or maybe high ranking of my website. So what is the most economical way doing that? Of course, one is like, paying Google and, getting it that done. But then वो तो खैर नहीं possible because of, the lot of other constraints. So what is the most economical way to do it? I mean, my one of the possible thinking was, क्या मतलब हम लोग वेबसाइट में जैसे डेली कुछ ना कुछ चेंज करते रहो, क्या उसकी रैंकिंग ऊपर आती है क्या ऑटोमेटिकली? नहीं, ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं होता है, इसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एज एन एक्टिविटी बोलते हैं। सो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर देयर। मैंने थोड़ा सा यहाँ पे कुछ कवर किया है, वो मैं आगे की एक स्लाइड में जस्ट टेक दैट थ्रू, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। बट आपके वेबसाइट में डेफिनेटली जो कीवर्ड्स हैं वो रहना चाहिए और उसको टेक्निकली भी सर्च इंजन फ्रेंडली बनाना पड़ता है, जो कि आपको मतलब कंटेंट आपको दिख रहा है बट उसके वेबसाइट के पीछे there is on page optimization which we call it as। तो उसमें उसका मेटा, टाइटल, कीवर्ड, डिस्क्रिप्शन, ये सारा चीजें जब डालते हैं तो there is a very very defined algorithm of Google जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो धीरे धीरे आपका रैंकिंग इंक्रीज होता है। इट्स अ लॉन्ग टर्म एक्टिविटी, it will take 4 to 6 months of time to initially start ranking। So उसके लिए you need to basically either have people in house जो search engine optimization as an activity को समझ सके, या you need to outsource it to some agency like us to actually start ranking। Okay. Just last question. I mean about LinkedIn you have mentioned. LinkedIn में भी कुछ paid work होता है क्या? हाँ, लिंक्डइन में भी पेड एडवर्टीजमेंट्स होते हैं। जैसे आपका फेसबुक में आप पेड एड्स कर सकते हैं, वैसे ही लिंक्डइन में भी आप एडवर्टीजमेंट्स रन कर सकते हैं, जिसमें आप ये सेम जो मैंने बताया आपको व्हेन, वेयर, हु को बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। लिंक्डइन में हु का जो डेफिनेशन होता है वो बहुत अच्छा होता है, बिकॉज आप उसमें ऑक्यूपेशन लेवल टारगेटिंग ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। आप इसको ऐसा सोचिए कि जैसे जब आप लिंक्डइन का प्रोफाइल बनाते हैं या जो फेसबुक का प्रोफाइल बनाते हैं, तो जो लिंक्डइन में आप प्रोफाइल बनाते समय जो चीजें डालते हैं, you put your designation, you put your company name, you put your category of the business which you are into, वो सेगमेंट्स पे आप ऐड दिखा सकते हैं। Whereas फेसबुक में आप जो बनाते हैं, जैसे फेसबुक में आप अपना सिर्फ नाम, लोकेशन, सिटी डालते हैं, एज डालते हैं, तो आप सिर्फ उतना ही दिखा सकते हैं। Whereas लिंक्डइन में आप
योर डिजिग्नेशन लाइक परचेज मैनेजर, डायरेक्टर, इंडस्ट्री, ये सब चीजें डालते हैं तो आप उस सारे सेगमेंट्स पे ऐड दे सकते हैं. सो LinkedIn वर्क्स रियली वेल फॉर B2B बिजनेसेस. Okay. आप All right. पुश फॉर्मेट में करना चाहते हैं. Okay. All right. Thank you. Yeah. थैंक यू. Thanks, Rohit. Yeah. So मैंने ये push and pull, so coming back to the slide, मैंने push and pull को यहाँ पे जैसे Rohit, we are sorry to intervene. I think the first lady has raised her hand. She would like to say something. yeah. Hello, sir. My query is, if there is a new setup, Yeah. with a new concept and everything, so what marketing would you suggest? Pull or push is more effective? आपका क्या प्रोडक्ट है मैम? So we deal with n number of. We are dealing into the petroleum, tires, automobile dealerships. So here B2B customers are also there, B2C customers are also there. In that case, what will be the more effective? Whether it is push or pull? What you suggest? अगर आपका B2C प्रोडक्ट्स हैं तो मतलब आप टायर्स एंड एक्सेसरीज जैसे सब ये सब सेल करते हैं. हाँ, तो उसके लिए आपको गूगल एड्स से भी अच्छा रिजल्ट्स मिलेगा जो कन्वर्ट होगी इंक्वायरीज. फेसबुक से अगर आप करेंगे और इंस्टाग्राम से करेंगे तो शायद उससे इंक्वायरीज मिलेंगी लेकिन कन्वर्ट कम होंगी. वेराज अगर आप गूगल एड्स करेंगे या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करेंगे तो आपको इंक्वायरीज ज्यादा अच्छे से कन्वर्ट होंगी. जैसे टायर डीलर्स, सो वी हैड a few clients in that sector, तो उसमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वर्क्स रियली वेल. मतलब जो गूगल पे अगर आपका रैंकिंग आ रहा है टायर डीलर्स इन नागपुर, बैटरी डीलर्स इन नागपुर, बैटरी सप्लायर्स इन नागपुर, MRF टायर्स इन नागपुर, इस तरीके की कीवर्ड्स पे अगर आपका नाम प्रेजेंट है तो उससे आपको इंक्वायरीज मिलती भी है और कन्वर्ट भी होती है. सो आई वुड से कि पुल फॉर्मेट वुड वर्क वेल. Thank you. Please continue, Rohit. Yeah. So जैसे अभी अपन ने when, where, who, how and what को मैंने यहाँ पे elaborate किया है. what में जैसे मैंने बताया कि push फॉर्मेट में आपका WhatsApp, Facebook, LinkedIn, Instagram ये सारा चीजें हो सकता है. pull फॉर्मेट में it's Google ad और search engine optimization, which falls in the pull format. यानी अगर आप Google पे ad देते हैं या YouTube पे ad देते हैं या आपका वेबसाइट अगर रैंक करता है तो that falls in the pull format of advertisement. पुश का जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पुश फॉर्मेट से आपका ब्रांड बिल्डिंग बहुत अच्छा होता है. वेरन आपके इसके कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जो मैंने यहाँ पे कवर किए हैं. द एडवांटेज ऑफ पुश फॉर्मेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट इज दैट इट प्रोड्यूसेस क्विक रिजल्ट्स एंड मेक्स क्लियर स्टेटमेंट टू द कस्टमर. इट इज लेस कंसर्न विद ब्रांडिंग एंड मोर कंसर्न विद क्रिएटिंग एन इंस्टेंट डिमांड. जैसे आपका कुछ किसी भी प्रोडक्ट के लिए आपको इंस्टेंट टेस्टिंग करनी है तो यहाँ से आपको पुश फॉर्मेट से वो ज्यादा जल्दी होती है. डिसएडवांटेज ऐसा होता है कि आपको ये बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स नहीं देते और ये कंटिन्यूस आपको करते रहना पड़ता है. तो इसमें आपका एडवर्टीजमेंट स्पेंड कंटिन्यूस जब आप करेंगे दैट्स व्हेन यू वुड जनरेट अ गुड अमाउंट ऑफ इंक्वायरी और आपको कंटिन्यूसली कस्टमर्स को प्रेजेंट रहना पड़ता है. तो उसमें आपका स्पेंड पुश फॉर्मेट में थोड़ा ज्यादा होता है. पुल फॉर्मेट ऑफ एडवर्टीजमेंट में जैसे मैंने बताया कि हर कंपनी के रिलेवेंट देयर कैन बी डिफरेंट सेट ऑफ कीवर्ड्स जो वो डिफाइन कर सकते हैं. सो देयर कैन बी ब्रांड कीवर्ड्स, देयर कैन बी जनरल कीवर्ड्स, देयर कैन बी प्रोडक्ट और कैटेगरी कीवर्ड्स, देयर कैन बी जियो टारगेटिंग कीवर्ड्स एंड देयर कैन बी कंपटीशन कीवर्ड्स. तो ये आपके सबके बिजनेसेस के लिए ये जो मैंने आपको जनरल कैटेगराइजेशन बताया ये रह सकता है. और इसमें जैसे जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसमें गूगल एड्स जो होते हैं, अगर आप गूगल पे कुछ भी सर्च करेंगे तो आपको फर्स्ट 3 रिजल्ट्स यूजुअली जो मिलते हैं वो एडवर्टीजमेंट के थ्रू मिलते हैं. वहाँ पे एक आपको बाजू में एड लिखा हुआ दिखेगा, लेफ्ट हैंड साइड में आपको छोटा सा एक एड लिखा हुआ दिखता है. सो बेसिकली ये वो गूगल को अगर आप पैसे देंगे तो आपका नाम वहाँ पे दिखना शुरू हो जाता है. एंड उसके नीचे के जो रिजल्ट्स दिखते हैं वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू दिखते हैं. सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में जैसे मैंने अतुल जी को बताया था कि इसमें ऑन पेज एंड ऑफ पेज होता है. ये थोड़ा टेक्निकल है बट आपको मैंने नॉन टेक्निकली जैसे समझाने की कोशिश की इधर कि ऑन पेज का मतलब होता है कि आप अपने वेबसाइट बनाते समय उसको किस तरीके से बनाते हैं जिससे कि वो गूगल के एल्गोरिदम्स में फिट हो, उसको ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं. मतलब आपका जो वेबसाइट होता है उसमें अगर आपका मेटा, टाइटल, कीवर्ड, डिस्क्रिप्शन अगर अच्छे से डला हुआ है तो मतलब आपका ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन अच्छे से किया हुआ है. अच्छे से किया हुआ मतलब ये गूगल के एल्गोरिदम्स के हिसाब से किया हुआ है, जिस वजह से आपका रैंकिंग आने का मतलब दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू स्टार्ट रैंकिंग ऑन योर वेबसाइट.
ऑफ पेज का मतलब होता है कि जो अतुल जी बोल रहे थे, अगर हम अपने वेबसाइट पे कंटेंट डालते रहते हैं, रेगुलरली ब्लॉग्स डालते हैं, रेगुलरली कुछ फोरम्स डालते हैं, तो ये ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट होता है, जहाँ की आप अपने वेबसाइट पे या अपने वेबसाइट के अलावा इंटरनेट पे रेगुलरली कंटेंट जनरेशन फॉर योर बिजनेस कर रहे हैं। तो बेसिकली जब ये ऑन पेज एंड ऑफ पेज आप कंटिन्यूस बेसिस पे करते हैं एज पर द गूगल एल्गोरिदम्स, तो आपका वेबसाइट का रैंकिंग धीरे धीरे ऊपर आना शुरू कर होता है। आपका रैंकिंग आना कैसे शुरू होना चाहिए, कौन से कीवर्ड्स पे शुरू होना चाहिए, वैसा आपको ये डिफाइन करना पड़ता है आपके इंडस्ट्री के रिलेवेंट। मतलब आपके लिए कौन, आपका कस्टमर आपको किस तरीके से जोड़ रहा है, वो आपको डालना रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं रोहित जी की बात करूं तो चांडक इंस्ट्रूमेंटेशंस, ये नाम से शायद लोग सर्च ना करें, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि चांडक इंस्ट्रूमेंटेशंस इस तरीके से कोई कंपनी है। या जैसे ऋषभ शाह की बात करूं तो शाह फर्नीचर, ये अगर लोगों को पता है तो वो शायद ऋषभ के पास डायरेक्टली पहुंच जाएंगे। बट ऋषभ के लिए जो दूसरे कीवर्ड जो लोग सर्च कर सकते हैं, विच कैन बी फर्नीचर मैन्युफैक्चरर्स इन नागपुर, चेयर्स इन नागपुर, जैसे जनरल कीवर्ड्स फॉर ऋषभ कैन बी फर्नीचर मैन्युफैक्चरर्स इन नागपुर, बेस्ट फर्नीचर शॉप्स इन नागपुर, ये जनरल कीवर्ड्स हो सकते हैं। ब्रांड कीवर्ड्स हो सकते हैं शाह फर्नीचर इन नागपुर। कैटेगरी कीवर्ड्स जैसे हो सकते हैं चेयर्स इन नागपुर, वार्डरोब्स इन नागपुर, स्टील फर्नीचर इन नागपुर। सो ये कैटेगरी कीवर्ड्स हो सकते हैं। जियो टारगेटिंग कीवर्ड्स, मतलब अगर समझिए जैसे ऋषभ चाहता है कि वो छत्तीसगढ़ में भी इंक्वायरी जनरेट करे, सो हिज कीवर्ड्स कैन बी फर्नीचर शॉप्स इन रायपुर और फर्नीचर शॉप्स इन छत्तीसगढ़, फर्नीचर सप्लायर्स इन छत्तीसगढ़। वेराज वो चाहते हैं कि नागपुर में ही लोग सर्च करें और वहां वो प्रेजेंट रहे, तो इट कैन बी इन नागपुर, मतलब फर्नीचर शॉप्स इन नागपुर, फर्नीचर सप्लायर्स इन नागपुर। कंपटीशन कीवर्ड्स अगेन, अगर कोई इरोस फर्नीचर सर्च कर रहा है या स्पेस फूड सर्च कर रहे हैं, तो इस कीवर्ड्स पे भी ऋषभ का वेबसाइट ऊपर दिख सकता है अगर वो चाहे तो। मतलब वो एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू उनका नाम दिख सकता है। तो जब कोई कंपटीशन के बारे में भी, ये जैसे रोहित चांडक जी ने भी जो सवाल पूछा था कि वो अपने कंपटीशन के रिलेवेंट भी अगर कोई सर्च कर रहा है तो उनका नाम भी वहां पे दिख सकता है अगर वो चाहे तो जिससे फिर क्या होता है कि कस्टमर के पास में एटलीस्ट आपके पास में एक इंक्वायरी आने का चांसेस बढ़ जाता है। सो बेसिकली फुल फॉर्मेट ऑफ एडवर्टीजमेंट में आपको कीवर्ड्स डिफाइन करना जरूरी होता है आपके इंडस्ट्री के रिलेवेंट, जहां पे आपका वेबसाइट दिखे। जब वो दिखेगा तो ऑटोमेटिकली आपको इंक्वायरी आने का चांसेस रहते हैं। सो ये बेसिकली जो किसी भी फॉर्मेट ऑफ मार्केटिंग का जो एक आउटकम होता है, वी कॉल इट एज द फनल आउटकम ऑफ मार्केटिंग, जिसमें अगर अपन कोई भी मार्केटिंग कर रहे हैं, लेट्स से डिजिटल कर रहे हैं या प्रिंट एड कर रहे हैं या आउटडोर कर रहे हैं, तो मार्केटिंग का आउटकम होता है रीच या लीड्स। बेसिकली जब आप एक कोडिंग लगाते हैं तो आपको पता रहता है कि यहाँ से धर्मपेट स्क्वायर से रोज 1 लाख लोग जाते हैं, तो बेसिकली आपको उसमें 1 लाख लोगों तक आपकी विजिबिलिटी जा रही है, उसमें से जो इंक्वायरी रेस करेगा उसको लीड्स बोलते हैं। सो आप कोई भी मार्केटिंग करेंगे तो उसका आउटकम होता है रीच या लीड्स। वैसे ही डिजिटल मार्केटिंग का भी आउटकम होता है रीच या लीड्स। एक बार आपकी लीड्स आ गई तो फिर उसके बाद में आपका अपॉर्चुनिटी वो मतलब उसमें से लीड्स में से कुछ लोग पॉजिटिव होते हैं, कुछ लोग पॉजिटिव नहीं होते हैं, तो जो पॉजिटिव होंगे उसको अपॉर्चुनिटी बोलते हैं। जो पॉजिटिव होंगे अपॉर्चुनिटी, उसमें से फिर कुछ लोगों को प्रपोजल्स आपके जाएंगे, उसमें फिर नेगोशिएशंस होगा और सेल्स होगा। सो बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग में ये सब चीजें बहुत मैथमेटिकल होता है। कन्वेंशनल एडवर्टीजमेंट में भी मतलब कन्वेंशनल एडवर्टीजमेंट में आप मेजर नहीं कर सकते, बट डिजिटल मार्केटिंग का ब्यूटी ये होता है कि आप इसमें सब चीजें, ये मैथ्स है पूरा। तो अगर आपको पता है कि आपके कितनी इंक्वायरीज आ रहे हैं और अगर आप इसको मेजर कर पा रहे हैं, तो धीरे धीरे आपको ये पता चल जाता है कि कितनी इंक्वायरी आएगी तो कितना सेल्स होगा। तो मैंने कुछ केस स्टडीज के फॉर्मेट में अगर आगे कवर किया है, जिसमें हमने मार्केटिंग किया, डिजिटल मार्केटिंग किया, जिससे कुछ लीड्स आई, उसमें से कुछ अपॉर्चुनिटी हुई, कुछ प्रपोजल्स गए, कुछ नेगोशिएशन हुआ, कुछ सेल्स हुआ। तो ये मैंने यहाँ पे जैसे कवर किया है। एक रियल एस्टेट कंपनी है, नागपुर में ही है, जिनका एक टाउनशिप प्रोजेक्ट है। वहाँ पे बेसिकली 48 यूनिट्स थे 3 BHK रो हाउसेस के, 16 यूनिट्स थे 3 BHK के बड़े रो हाउसेस के, 20 यूनिट्स थे 4 BHK के, जो अराउंड 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ के आसपास थे, एंड कुछ 2 and 3 BHK के फ्लैट्स थे। तो टोटल 110 यूनिट्स का उनका इन्वेंट्री था। हमने इसमें डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करी, जिसके थ्रू उनका मतलब पूरा सेल्स हुआ है। सो जैसे मैंने जो गोल्डन रूल कवर किया था उसको मैंने यहाँ पे एलैबोरेट किया है, विच इज व्हेन, वेयर, हाउ, हु एंड व्हाट। तो जैसे व्हेन अपना था, तो ये हमारे लिए ऑल राउंड द ईयर हमने डिजिटल मार्केटिंग एक्टिविटीज किया। वेयर में हमारा जैसे था कि नागपुर एंड 200 किलोमीटर इन एंड अराउंड के आसपास के लोगों को हमने अपना एडवर्टीजमेंट दिखाया,
एंड साइट लोकेशन जो था उसके 5 किलोमीटर्स के पास में दिखाया, बिकॉज लोग उसी एरिया में रहना चाहते हैं। हमने इनको कैसे रीच आउट किया, उनको स्टैटिक इमेजेस दिखाए, वीडियोस दिखाए, ब्लॉग्स दिखाए, टेस्टिमोनियल दिखाए, ये सब हमने कंटेंट जनरेट किया। इसमें हु जो था, तो हु में हमारा जैसे मेल फीमेल दोनों थे। यूजुअली रियल एस्टेट 30 to 60 ईयर्स के बीच में लोग खरीदते हैं, उसके पहले नहीं खरीदते। उसमें हु में आईटी इंडस्ट्री में वर्क करते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, बिजनेसेस हैं, HNIs हैं। तो ये बेसिकली हमारा हु था। हमने इनको किस तरीके से रीच आउट किया, व्हाट में पुल एंड पुश दोनों यूज किया। पुल में जैसे हमने इसमें गूगल एड्स रन किए, जो कि हमारा कैटेगरी रिलेवेंट कीवर्ड, टाउनशिप रिलेवेंट कीवर्ड्स, प्रोडक्ट रिलेवेंट कीवर्ड्स, रो हाउसेज इन नागपुर, फ्लैट्स इन नागपुर, टाउनशिप्स इन नागपुर, इस तरीके के हमारे गूगल एड्स और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन था। हमने इसमें ये पुश फॉर्मेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट में फेसबुक मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग यूज किया, बिकॉज लिंक्डइन मार्केटिंग वाज नॉट वेरी रेलेवेंट फॉर अस फॉर रियल एस्टेट। और दूसरा प्रॉपर्टी पोर्टल्स यूज करे, जो ऑब्वियसली मैजिक ब्रिक्स, 99 एकर्स थे। इसका जो आउटकम हुआ, जो मैंने आपको ये मार्केटिंग फनल से दिखाया, तो उसमें हमारे 18,000 इंक्वायरीज जनरेट हुए। 18,000 इंक्वायरीज में हमारा एक प्री सेल्स टीम था जिसने इस पे कॉलिंग करी। हर इंडस्ट्री में ये जरूरत पड़ेगी आपको, अगर आपके पास में लेट से अगर आप कोई भी मार्केटिंग करेंगे तो इंक्वायरीज आएगी, वो इंक्वायरीज को आपको बात करना पड़ेगा। जब बात करेंगे तो उसमें से कुछ इंक्वायरीज आपका वॉक इन के फॉर्मेट में या अपॉर्चुनिटीज के फॉर्मेट में कन्वर्ट होगी, फिर उसका प्रपोजल, नेगोशिएशन और सेल्स का स्टेज रहेगा। वैसे हमारा रियल एस्टेट में 18,000 इंक्वायरीज में से अराउंड 1800 ही लोग वॉक इन करें, सो अराउंड 10%। जैसे मैंने आपको बताया मैथमेटिकल होता है, तो हम लोगों ने 18,000 में से 1800 इंक्वायरीज हमारे साइट पे विजिट हुआ, जिसमें से अराउंड 87 यूनिट्स बुक हुए। ये थोड़ा सा पुराना स्लाइड है, बट अभी जैसे इस प्रोजेक्ट में अराउंड 24,000 इंक्वायरीज हमने जनरेट करी, अराउंड 2400 विजिट्स करी, और अभी ऑलमोस्ट उनका पूरा इन्वेंट्री ऑफ 110 यूनिट्स सेल आउट हुआ है। ये पूरा डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ही हुआ था। तो इसमें हमने ये जो गोल्डन रूल मैंने आपको बताया वो इम्प्लीमेंट किया, और फिर ये मार्केटिंग फनल भी इम्प्लीमेंट किया, जिसके थ्रू हमारा मार्केटिंग टू सेल्स का जर्नी पूरा कंप्लीट हुआ। ये हर इंडस्ट्री में इसी तरीके का मार्केटिंग टू सेल्स का जर्नी रहेगा, नंबर्स अलग अलग रहेंगे। सो जैसे ये मैंने रियल एस्टेट का एक केस स्टडी बताया, वैसे ही एक एजुकेशन का केस स्टडी है। सो दिस वाज फॉर अ BBA कॉलेज इन नागपुर, जिसमें हमने उनके BBA के पूरे एडमिशंस ड्राइव किए थे यूजिंग डिजिटल मार्केटिंग। सो आप देखेंगे तो इसमें व्हेन, हाउ, हु एंड व्हाट काफी कुछ डिफरेंट है। जैसे व्हेन में, क्योंकि ये सीजनल बिजनेस था, तो मई, जून एंड जुलाई ये 3 महीने में ही हमारा एडवर्टीजमेंट था, ये ईयर राउंड एडवर्टीजमेंट नहीं था। वेयर, तो नागपुर एंड 50 किलोमीटर्स ऑफ नागपुर एंड 5 किलोमीटर्स फ्रॉम द कॉलेज लोकेशन। कैसे रीच आउट किया, स्टैटिक इमेजेस बनाए, वीडियोस बनाए, ब्लॉग्स बनाए, टेस्टिमोनियल्स बनाए। इसके लिए टारगेट ऑडियंस क्या था हमारा, तो क्योंकि BBA कॉलेज था तो 12th के बाद होता है, तो अराउंड 17 to 21 ईयर्स के स्टूडेंट्स को हमने अलग एडवर्टीजमेंट दिखाया और पेरेंट्स को अलग एडवर्टीजमेंट दिखाया, जिसका कंटेंट अलग अलग था। स्टूडेंट्स को अलग कंटेंट दिखाया विच वाज अराउंड इंफ्रास्ट्रक्चर, which was around the events, around the facilities in the college. जो पेरेंट्स को दिखाया वो कंटेंट हमारा प्लेसमेंट्स, बेटर फ्यूचर, इस तरीके का कंटेंट दिखाया, जिसका व्हाट हमने कैसे रीच आउट किया, तो गूगल एड्स के थ्रू एंड फेसबुक मार्केटिंग के थ्रू रीच आउट किया। आप देखेंगे तो इसमें हमारा जो मार्केटिंग फनल था उसका रिजल्ट्स बहुत अलग था। इसमें हमारे 908 इंक्वायरीज जनरेट हुए, जिसमें अराउंड 168 वॉक-इन्स हुए एंड अराउंड 100 एडमिशंस हुए। सो आवर इंक्वायरी टू सेल रेशियो वाज very good, whereas in real estate it was not so good. मतलब इसमें अराउंड 5% के आसपास वॉक इन टू सेल्स का कन्वर्जन हुआ, whereas यहाँ पे आप देखेंगे तो अराउंड 168 वॉक-इन्स हुए, जिसमें से 100 एडमिशंस भी हुए। सो बेसिकली आपके सेक्टर के रिलेवेंट, आपके इंडस्ट्री के रिलेवेंट, आपके बिजनेस के अराउंड आपको इसी तरीके से व्हेन, वेयर, हाउ, हु एंड व्हाट पहले डिफाइन करना जरूरी है, और फिर वो डिजिटल मार्केटिंग में पुश या पुल फॉर्मेट ऑफ एडवर्टीजमेंट के थ्रू आप कैसे रीच आउट करेंगे वो पता रहना चाहिए आपको। जब आप रीच आउट करेंगे तो उसमें इस तरीके का आपका एक मार्केटिंग फनल बनेगा, विच वुड बी अराउंड लीड्स जो आपको मिलेंगी। आप जब डिजिटल मार्केटिंग करेंगे तो उसमें आपको इंक्वायरीज में आपका नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, ये सारा डिटेल्स आपको मिल जाता है, जिसपे फिर आपका एक कॉलिंग होने के बाद में उसमें से कुछ अपॉर्चुनिटी बनेंगे, कुछ प्रपोजल्स बनेंगे, कुछ नेगोशिएशन और कुछ सेल्स में जाएगा। तो इस तरीके से ये जैसे मैंने जो 2 केस स्टडीज बताई हैं, ये आपके इंडस्ट्री के रिलेवेंट ये सारे नंबर्स और ये सारा स्ट्रैटेजी अलग अलग हो सकता है, विच अगर आपको पता रहेगा तो आप खुद भी ये काफी सारा चीजें ड्राइव कर सकते हैं।
अगर खुद ड्राइव नहीं करेंगे तो किसी को अगर आउटसोर्स करेंगे तो आपको ये अगर नॉलेज रहेगा तो आप उससे ज्यादा अच्छे तरीके से काम करा पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी बार क्या होता है कि लोग एजेंसी हायर करते हैं, खुद करने की तो कोशिश करते हैं, लेकिन उनको खुद पता नहीं रहता है कि हाउ टू गो अबाउट इट। सो अगर आपको ये नॉलेज रहेगा या ये बेसिक सिर्फ नॉन टेक्निकल नॉलेज भी रहेगा तो आप उसको बेहतर तरीके से ड्राइव कर सकेंगे। सो ये बेसिकली B2B एंड B2C कंपनीज के लिए डिजिटल मार्केटिंग का यूजुअली एक्टिविटीज रहते हैं। वैसे ही जो प्रोडक्ट कंपनीज हैं जो कुछ प्रोडक्ट्स बना रहे हैं वो बेसिकली फेसबुक, इंस्टाग्राम मार्केटिंग ये सब करने से इनका प्रोडक्ट बिकता नहीं है, बट सिर्फ अवेयरनेस बिल्ड होता है। सो ये ई कॉमर्स सर्विसेज या ई कॉमर्स में बेसिकली फ्लिपकार्ट, अमेजोन ये सारे प्रोडक्ट्स पे, ये सारे वेबसाइट्स पे अपने प्रोडक्ट बेच सकते हैं, या एक अपना वर्चुअल जैसे जो दुकान, जो रिटेलर है जो अपना एक दुकान सेटअप कर सकते हैं। सो बेसिकली डिजिटल ई कॉमर्स में बेसिकली ये 3 तरीके की चीजें होती हैं। बेसिकली जैसे गेटिंग स्टार्टेड में आपको अकाउंट ओपन करना पड़ता है, आपका प्रोडक्ट का फोटोग्राफी एंड कैटलॉगिंग करना पड़ता है। कैटलॉगिंग से मतलब है कि उसके अराउंड कंटेंट बिल्ड करना पड़ता है। एक डेली ऑपरेशंस रहता है जिसमें आपको फिर ऑर्डर्स आते हैं तो उसको ऑर्डर को प्रोसेस करना पड़ता है, इन्वेंटरी मैनेजमेंट करना पड़ता है, लॉजिस्टिक होगा, विच इज अराउंड डेली ऑपरेशन। एंड देन ग्रोइंग सेल्स होता है, जैसे आपका एडवर्टीजमेंट्स करना है, मार्केट प्लेसेस से रिलेशनशिप है, आपका प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है। सो बेसिकली ये ई कॉमर्स में दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। ई कॉमर्स में हम लोग पिछले 4-5 साल से ये सारी चीजें कर रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग को अभी 11-12 साल हुआ है, बट ई कॉमर्स में वी हैव बीन डूइंग इट फॉर द लास्ट 4-5 इयर्स। उसमें हमारे कुछ मतलब ऑब्जर्वेशंस है व्हिच आई हैव क्विकली ट्राइड एंड कवर्ड हियर। यूजुअली आप कोई भी ई कॉमर्स एज अ पोर्टल में अपना अगर करना चाहते हैं, लेट्स से अगर आपका दुकान है और आप सोचते हैं कि अभी मैं फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे बेचना शुरू करूंगा, तो कम से कम आपको 1 साल का विजन रहना चाहिए और 3 साल तक आपको वहाँ पे मतलब कंटिन्यू करेंगे उसका एक इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी होना चाहिए। जैसे कि आपका एक ग्राउंड लेवल में अगर आप एक अपना रिटेल आउटलेट खोलते हैं तो आपको कम से कम 3-4 साल का एक विजन रखना पड़ता है। वैसे ही ई कॉमर्स में भी आपको, बिकॉज आप ये इंडिया वाइड दुकान खोलेंगे, जैसे अगर आप फ्लिपकार्ट पे सेल कर रहे हैं तो आप इंडिया वाइड दुकान खोल रहे हैं और इंडिया वाइड सेलर से कम्पीट कर रहे हैं। सो दैट्स वाई आपको वहाँ पे भी एक उसी तरीके का माइंडसेट होना चाहिए। आपको बेसिकली जैसे आपका प्रोडक्ट रेंज, प्राइसिंग, टारगेट मार्केट क्या है, टारगेट प्रोडक्ट रीच क्या है, वो पता रहना चाहिए। आपको यूजुअली 4 से 6 महीने लगते हैं सिर्फ दुकान को सेटअप करने में, जिसमें कि आपका ब्रांड क्रेडिबिलिटी आता है और थोड़ा सा सेल होना शुरू होता है और कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट के बारे में किस तरीके से सोच रहे हैं वो पता चलते हैं। यूजुअली आपका फोकस जो रहना चाहिए रिपीट परचेज या रेफरल परचेज पे रहना चाहिए। दैट्स व्हेन ये प्रॉफिटेबल हो पाते हैं। ई कॉमर्स पे सेल करने के लिए आपको पैकेजिंग और कंटेंट बहुत अच्छा चाहिए, बिकॉज आप कंप्लीट जो कर रहे हैं वो पैन इंडिया कर रहे हैं। सो बेसिकली जो भी प्रोडक्ट रिलेवेंट कंपनीज हैं या जो प्रोडक्ट रिलेवेंट लोग हैं यहाँ पे जो बेसिकली करना चाहते हैं, तो उनके लिए शायद डिजिटल मार्केटिंग एक्टिविटी से दे माइट नॉट गेट दैट रिजल्ट्स, या वहाँ पे उनको सिर्फ एक अवेयरनेस बिल्ड होगा लेकिन उससे डायरेक्टली कुछ सेल्स रिलेशन नहीं रहेगा। वेराज अगर वो ई कॉमर्स पे फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन पे करेंगे तो वहाँ से डायरेक्टली सेल्स हो सकते हैं। So broadly, this brings me to the end of session. It's almost 11:30 now. So we can have another round of questions now, Rishabh. Sure, Rohit bhaiya. Nidhi Rathi had raised her hand first. Nidhi ji, if you could go ahead with your question. जी सर, मेरे को ये पूछना था कि सर गूगल में रैंकिंग फ्लक्चुएट क्यों हो जाती है? जैसे सर मेरा नागपुर में गर्ल्स हॉस्टल है, तो वो जब मैं गूगल में सर्चिंग करती थी तो तब वो एक टॉप लिस्ट में दिखता था, ना वो टॉप 10 में भी नहीं दिख रहा है। उसका रीजन जानना चाहूंगी सर। हाँ मैम, क्योंकि गर्ल्स हॉस्टल इन नागपुर में आपके अलावा बाकी लोग भी उस पर एडवर्टीजमेंट कर यानी अपना सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, तो अगर आपके और पहले पेज पे सिर्फ 10 ही रिजल्ट्स आते हैं, जिसमें से पहले 3 रिजल्ट जो है वो पेड एडवर्टाइजमेंट होते हैं और उसके नीचे पे जो 7 रिजल्ट्स रहते हैं वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू होते हैं। तो अगर आप ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ऑनगोइंग बेसिस पे नहीं करेंगे तो धीरे धीरे आपका रैंकिंग नीचे जाता जाएगा और दूसरे लोगों का रैंकिंग ऊपर आएगा। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एज एन एक्टिविटी आपको ऑनगोइंग हमेशा करना पड़ेगा। दैट्स व्हेन आपका रैंकिंग प्रेजेंट रहेगा। ओके सर। सर वन मोर क्वेश्चन सर, जैसे गूगल ये जो एडवर्टाइजमेंट्स देते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या गूगल एड्स पे, तो मेरे प्रोफेशन के लिए, मेरे बिजनेस के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा रहेगा? तो ये क्या गर्ल्स हॉस्टल है? यस।
आपके लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग में फेसबुक एंड इंस्टाग्राम मार्केटिंग भी अच्छा वर्क करेगा, बिकॉज आपको आपका टारगेट ऑडियंस बहुत डिफाइंड है। लेट्स से ये 12th के बाद लोग आते हैं या 10th के बाद आते हैं, तो यू ऑलरेडी नो ये 15 ईयर्स से लेकर लेट्स से 20 ईयर्स तक के गर्ल्स हैं। तो आप इसमें सिर्फ इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एडवर्टीजमेंट भी रन कर सकते हैं, जहां से आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। एंड गूगल पे आपका जो रैंकिंग है वो रहना ही चाहिए, बिकॉज वहां से आपको इंक्वायरीज कम आएंगी लेकिन वो क्लोज होंगे। क्योंकि अगर कोई सर्च करे गर्ल्स हॉस्टल इन नागपुर, बेस्ट गर्ल्स हॉस्टल इन नागपुर, और वहां प्रेजेंट है, तो वहां पे आपको ऑलरेडी पता है कि वो गर्ल्स हॉस्टल ढूंढ रहा है। तो अगर आप वहां प्रेजेंट रहेंगे तो आपको इंक्वायरीज ज्यादा अच्छे से Rotary. Thank you, sir. थैंक यू। Rotarian Manish Baheti, please. Dr. Manish Baheti. Hello. Yes, Manish ji. Rohit Gupta ji, nice presentation. Only thing I wanted to ask, you gave us two examples. One was flat scheme where you worked out on both aspects. So I will just want to know how much can be the budget for such marketing? Means approximate. I won't say it will be applicable to everyone the same, but minimum budget you should guide. This much budget is minimum which is required to create some. सर यूजुअली हमारा जैसे रियल एस्टेट में मेरा एक्सपीरियंस मतलब बिकॉज मेरा मार्केटिंग से सेल्स का पूरा है, यूजुअली 2% ऑफ योर प्रोजेक्ट इन्वेंटरी कैन बी द मार्केटिंग कॉस्ट। But why it is in percent? I mean to say, see, somebody might be having 48 flats, somebody might be having 200 flats, but the marketing will be same. So there has to be certain minimum budget, say 1 lakh, 2 lakh, 5 lakh, 3 lakh per year or annual, something like that. नहीं, आपका एक्चुअली जैसे जो मैंने आपको लीड्स दिखाया है ना यहाँ पे, ये लीड का एक कॉस्ट होता है। सो जैसे अगर आप फेसबुक से अगर लीड जनरेट करेंगे तो वो यूजुअली 200 से 300 रुपए में आपको एक इंक्वायरी जनरेट हो जाएगी। वेरेज अगर आप गूगल एड्स के थ्रू करेंगे तो वो 700 से 800 के आसपास आपको एक इंक्वायरी का कॉस्ट जाएगा। मैजिक ब्रिक्स से भी अराउंड 700-800 जाएगा। तो आपको कैसा है कि यूजुअली रियल एस्टेट में अगर आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रेटेजिक है, उसका लोकेशन भी अच्छा है, उसका प्राइस भी बहुत अच्छा है, तो यूजुअली ये रेशियो 10-10-10 होता है। 10-10-10 से मेरा मतलब है आप जितनी इंक्वायरी जनरेट करेंगे उसमें से 10% लोग वॉक इन करेंगे, उसमें से 10% लोग क्लोज होंगे। No, basically I am into a hospital industry. Okay. So would you guide how much minimum budget I should carry? Maximum is okay. I know it's unlimited, but minimum where you feel things can be at least to begin with. आपका मतलब इसमें कैसे है कि आप कितने नए कस्टमर्स एक्वायर करना चाहते हैं, उसके ऊपर वो पूरा मैथमेटिक्स आप 10% मार्केटिंग स्पेंड में आपको एक नया कस्टमर एक्वायर होता है। तो वैसे ही हॉस्पिटल्स में आई थिंक वो रेशियो अराउंड आपके मेडिकल टूरिज्म कंपनीज में आप लोग जैसे 10 to 15% तो शेयर करते हैं ना उन लोगों को, तो यूजुअली आपको सेम एक्वायर भी खुद करेंगे तो अराउंड 8 to 10% का मार्केटिंग कॉस्ट जा सकता है। अब आपका टिकट वैल्यू कितना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर वो कार्डियक सर्जरी के लिए आ रहे हैं लेट्स से और उसमें 1 लाख रुपए का आउटफ्लो हो रहा है उसका, तो उसके अराउंड आपको लेट्स से एनीवेयर बिटवीन 7 to 10,000 में आपको एक कस्टमर एक्वायर हो सकता है। ओके। तो आपको न्यू कस्टमर्स कितने, आपका मतलब डेफिनेशन ऑफ न्यू कस्टमर और वो क्या सर्विस लेगा, उसके अराउंड आपका बजट आप रिवर्स कैलकुलेट। And will you suggest that this is really beneficial for a single specific department or only for corporates? नहीं सर, इट्स वेरी यूजफुल फॉर इवन सिंगल। मतलब आज के डेट में डिजिटली आपको प्रेजेंट रहना हर मतलब छोटा बिजनेस या बड़ा बिजनेस उनके लिए ज्यादा, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। इनफैक्ट आप बड़े लोगों से कम्पीट जो कर सकते हैं वो सिर्फ डिजिटली ही शायद कम्पीट कर पाएंगे, क्योंकि डिजिटल रिलेटिवली ज्यादा सस्ता है कंपेयर टू द कन्वेंशनल एडवर्टाइजमेंट। ओके, थैंक यू। Even a single specialty hospital, it works really well. Yeah. Okay. Megha ma'am, please go ahead. Sir, I have received few questions on my mobile phone. I would request you to take one by one. First question I got: competing digitally against deep pocket customers become very tough. How can we differentiate against such bigger competitor? मैम, इसमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एज एन एक्टिविटी या डिजिटल मार्केटिंग में आजकल बहुत सारा ट्रेनिंग्स अवेलेबल है।
तो आप कभी भी किसी एजेंसी को आउटसोर्स, ऑल्दो वी आर आल्सो एन एजेंसी, बट आप किसी भी एजेंसी को आउटसोर्स करेंगे तो उसमें उनका एक्सपेंसेस और वो सब चीजें भी कैरी फॉरवर्ड होगा। डिजिटल मार्केटिंग में आप काफी सारी चीजें खुद भी सीख सकते हैं अगर आपको थोड़ा इंटरेस्ट है तो अगर आपका सिर्फ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एज एन एक्टिविटी भी अगर आप खुद से अपनी वेबसाइट पे करते हैं तो उसमें आप मतलब बहुत कॉस्ट इफेक्टिव वे में कस्टमर्स एक्वायर कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली आपको खुद वो नॉलेज रहेगा तभी आप वो कर पाएंगे, या तो एटलीस्ट बेसिक्स पता रहना चाहिए जिससे आप वो सही काम दूसरे किसी एजेंसी से करवा पाए। सो पेड एडवर्टीजमेंट के बदले जो ऑर्गेनिक रीच होता है, जो ऑर्गेनिकली आप कस्टमर से पहुंच पाते हैं, जैसे मैंने आपको ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में बताया था इस स्लाइड में कि फ्री, ऑर्गेनिक और नेचुरल सर्च रिजल्ट्स। तो अगर आप ये फ्री मतलब आप अपनी वेबसाइट को अगर समहाउ रैंक करना शुरू करें आपके प्रोडक्ट के रिलेवेंट, तो वहां से आपको जो कस्टमर्स एक्वायर होंगे वो आप डेफिनेटली कम कॉस्ट में एक्वायर कर पाएंगे और अपने कंपटीशन से भी उसमें आप जीत पाएंगे या एटलीस्ट सरवाइव कर पाएंगे। आई वुड। Okay, sir. Sir, second question I received on my mobile, that apart from Facebook, LinkedIn, Instagram, and YouTube, and Twitter also, any other tool is there to market the product? नहीं, अगर आप लोकल प्रोडक्ट मतलब लेट से नागपुर में ही सर्व करना चाहते हैं या नागपुर के रिलेवेंट ही आपका टारगेट ऑडियंस है, सो इवन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम इज गुड इनफ। ट्विटर एंड लिंक्डइन इज गुड फॉर ओनली B2B कंपनीज। B2C में वो बहुत ज्यादा काम का नहीं है। B2C के लिए फेसबुक एंड इंस्टाग्राम भी आपने अगर अच्छे से किया तो दैट्स गुड इनफ। उससे ज्यादा आपको, जैसे ट्विटर में भी यूजर्स बहुत कम है तो ट्विटर में आप एडवर्टीजमेंट्स करके कोई आपको बहुत फायदा नहीं मिलेगा। यूट्यूब में भी ऑडियंस रिलेटिवली थोड़ा कम है, तो आप सिर्फ फेसबुक एंड इंस्टाग्राम भी अगर अच्छे से यूज करेंगे तो दैट्स गुड इनफ, मतलब उतना भी आपके लिए सफिशिएंट है। Sir, next question is, too much digital push sometimes annoy customers. What should be the thumb rule to control such challenges? मैम उसके रिलेवेंट तो आपको जैसे कैसे है कि आपको कस्टमर्स कितने न्यू अक्वायर करना है या प्रेजेंस के लिए बिल्ड करना है, वो दैट्स प्योरली योर मतलब आपके बिजनेस के रिलेवेंट रह सकते हैं। बट अगर आपको एक रेगुलरली न्यू कस्टमर इनफ्लो चाहिए है तो आपको वो एडवर्टीजमेंट्स कंटिन्यूस बेसिस पे ही करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं आपको ये एजुकेशन का एग्जांपल जो बताया था कि ये 3 महीने जैसे हैं और वो एजुकेशन का पीक सीजन टाइम है, तो उस समय तो आपको अगर आप जितना ज़्यादा प्रेजेंट रहेंगे, तो क्योंकि फेसबुक में आप जब ऐड देते हैं तो किस समय पे कौन सा आपका कस्टमर आ रहा है या नहीं आ रहा है वो आपको पता नहीं है। सो आपको लाइक डे लॉन्ग और मंथ लॉन्ग कैंपेन रहेगा तो आप ऐसा टारगेट कर सकते हैं कि आपके सारे कस्टमर जितने भी, जैसे लेट्स से अगर मेरे को 17 to 21 ईयर्स के मेल एंड फीमेल दोनों का ऐड दिखाना है, तो मैं जब पूरा महीने भर तक वो प्रेजेंट रहूंगा तब आप ऐसा सोच सकते हो कि शायद आपने अपने पूरे टारगेट ऑडियंस को ऐड दिखाया। सो डेफिनेटली यू शुड बी प्रेजेंट इन द होल ड्यूरेशन अगर आपको कस्टमर्स हमेशा नए एक्वायर करने हैं। तो अगर आपको सिर्फ अपना एक ब्रांड प्रेजेंस बिल्ड करना है और आपको न्यू कस्टमर्स की जरूरत नहीं है, विच आई थिंक शायद ही किसी ऐसा होगा आपको नए कस्टमर्स नहीं चाहिए अभी, तो फिर आप मतलब यू कैन जस्ट बी प्रेजेंट। बट अगर न्यू कस्टमर्स रेगुलरली चाहिए तो आपको एडवर्टीजमेंट या रेगुलर एक सोशल मीडिया प्रेजेंस बिल्ड करनी ही पड़ेगी। Sir, too much digital marketing could also turn out to be privacy issue as well. How do you avoid it or control it? The next question is. मैम वो प्राइवेसी इशू जिसके लिए रहेगा वो आपको ऑप्ट आउट कर सकता है, तो आपको एज अ ब्रांड वो फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर समझे किसी को आपका कंटेंट नहीं देखना है, सो ही कैन ब्लॉक यू। सो yes वो ऑप्शन ऑलवेज है, तो मतलब एज अ ब्रांड आपको वो फिक्र नहीं करना चाहिए। जिसको आपका कंटेंट नहीं चाहिए वो आपको ऑप्ट आउट कर सकते हैं या आपको ब्लॉक कर सकते हैं। ओके सर। सर, अगर कोई क्लाइंट ब्लॉक करता है किसी इसको सर्विस प्रोवाइडर को, तो लाइक सर्विस प्रोवाइडर विल गेट टू नो दैट द क्लाइंट हैज ब्लॉक्ड हिम?
हाँ, ये आपका बेसिकली अगर एक ईमेलर लिस्ट अगर आप लोग करते हैं तो ईमेलर लिस्ट में कुछ टूल्स होते हैं जहाँ पता चलता है कि किसने अपने को ऑप्ट आउट किया. Okay, and like in other Google ads and all? नहीं, उसमें आपको पता नहीं चलता है, बट बेसिकली अगर उसने ऑप्ट आउट कर दिया तो उसको आपका ऐड दिखना बंद हो जाएगा. सो दैट्स Yes. Sir, the next question is, how do you identify that the prospects for the product are present on a particular channel? Say if I want to know whether my customers are there on Facebook or not. अगर ये स्पेसिफिक मैम जिसने क्वेश्चन पूछा था उनका क्या सेक्टर है आप बताएंगे तो आई कैन आंसर इट बेटर. सर मेरे पास मोबाइल पे क्वेश्चन है तो ये तो मैं नहीं बता पाऊंगी, ये क्वेश्चन आया हुआ है मेरे पास. ओके. What will be the journal answer for this question? अगर आपका टारगेट ऑडियंस आपको डिफाइंड है कि लेट्स से वो उसका एज डिफाइंड है, उसका सिटी डिफाइंड है, तो सोशल मीडिया पे वो 100% प्रेजेंट है. वैसे तो अगर आप देखेंगे तो कन्वेंशनल एडवर्टीजमेंट में भी जब आप करेंगे तो आपको नहीं मालूम कि आपने होर्डिंग लगाया है या न्यूज़पेपर ऐड दिया तो वो सही आदमी तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है. उससे कभी भी ज्यादा बेहतर डिजिटली है, क्योंकि आप इसमें डिफाइन कर सकते हैं कि उसका एज क्या है, उसका सिटी क्या है. लेट से वो बैरमजी टाउन में रहता है, रामदासपेट में रहता है, तो ये सारा टारगेटिंग फेसबुक पे प्रेजेंट है. सो द जनरल आंसर कैन बी कि कोई भी इंडस्ट्री ऐसी नहीं होगी जिसका कस्टमर आज डिजिटल पे प्रेजेंट नहीं है, या वो शायद कन्वेंशनल एडवर्टीजमेंट में ना हो लेकिन डिजिटल तो 100% है. मतलब वो फेसबुक या मोबाइल पे तो है ही डेफिनेटली. सो हर इंडस्ट्री का कस्टमर डिजिटल तो है, और आप इसको बहुत टारगेटेड वे से रीच आउट भी कर सकते हैं, बिकॉज इसमें जियो टारगेटिंग ऑप्शन भी होते हैं जिसमें कि आप मतलब एक स्पेसिफिक रीजन को भी टारगेट कर सकते हैं. जैसे मैं एग्जांपल दूं, रामदासपेट से 4 किलोमीटर के रेडियस में मेरा ऐड दिखे, ये आप दिखा सकते हो फेसबुक पे. आप ये दिखा सकते हो कि मेरे को 25 साल से लेके 30 साल तक के फीमेल्स को सिर्फ ऐड दिखाना है जो नागपुर में रहते हैं. सो ये सारा फीचर्स डिजिटल मार्केटिंग में पॉसिबल है. सो हर इंडस्ट्री का ऑडियंस डिजिटल कहीं ना कहीं प्रेजेंट है जिसको आप रीच आउट कर सकते हो. Sir, you have already shared like 2 case studies during presentation. Can you share your experience on the industrial product digital marketing? Yes. So इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो है या जो इसमें बेसिकली अगर आप सिर्फ अपना गूगल एड्स या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को अच्छा करते हैं, सो दैट्स द बेस्ट थिंग टू डू फॉर एनी B2B और इंडस्ट्रियल रिलेवेंट प्रोडक्ट्स. क्योंकि मतलब वी हैव अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स जो हमारे पास सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एज अ सर्विस पिछले 4-4, 5-5 सालों से कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसके थ्रू उनको रेगुलर बेसिस पे इंक्वायरीज जनरेट हो रही है. सो B2B या इंडस्ट्रियल रिलेवेंट कीवर्ड्स के लिए गूगल प्रेजेंस अच्छा बिल्ड करना इज द बेस्ट मार्केटिंग विच दे कैन डू ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स. सो गूगल एड्स या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है वो अगर ये करते हैं तो उनके लिए सबसे अच्छा एज अ एक्टिविटी इनिशिएटिव हो सकता है. They might not be, मतलब even if they are not present on the social media platforms, that's perfectly fine. But Google पे presence उनका अच्छा रहेगा. So Manish Baheti has a question. Manish sir, please proceed. रोहित जी, मुझे ये पूछना था कि क्या कोई ऐसे एजेंसीज होते हैं who rather than charging upfront they can charge in the sharing of profits, digital marketing? सर हम लोग रियल एस्टेट में करते हैं, बट सिर्फ रियल एस्टेट में करते हैं, वो बाकी सेक्टर्स में नहीं करते हैं. आपका हॉस्पिटल्स के रिलेवेंट यू कैन फाइंड सम एजेंसीज जो आपको परफॉर्मेंस बेस्ड मॉडल पे या परफॉर्मेंस बेस्ड, सो परफॉर्मेंस बेस्ड मॉडल पे अगर जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज रहेंगी जो इसमें हैं तो वो हो सकता है. हेल्थ केयर में आपका क्या प्रोडक्ट है सर एग्जैक्टली, मतलब कौन सा स्पेशलिटी है? I'm basically a test tube baby center and gynecology. Okay. You can find people जो डिजिटल मार्केटिंग में आपको मतलब परफॉर्मेंस बेस्ड मॉडल पे भी वर्क करें. इस परफॉर्मेंस बेस्ड मॉडल में भी 2-3 एक्टिविटीज होती हैं. बेसिकली जो आपको बहुत सारे एजेंसीज मिलेंगी जो सिर्फ लीड जनरेशन करके देंगे. Yes. That is the plain vanilla option which a lot of agencies have. Yeah, but those leads are something like they call from Bangalore, Chandigarh and anything. They don't have a specific lead. आप अभी आपका जो भी एग्जिस्टिंग एजेंसी होगा उससे आप एक सेकंड मॉडल के लिए बात कर सकते हैं जिसमें आप बताइए कि हम आपको वॉक इन पे पैसे देंगे.
No, no, I don't have right now any digital marketing. बट अगर आप समझे जैसे करना चाहें तो आप व्हाट यू कैन डू इज, जैसे मैंने आपको ये जो बताया ना कि आप फर्स्ट स्टेप तो बहुत सारे एजेंसीज आपको मिल जाएंगे जो सिर्फ लीड जनरेशन करके दे Yeah, देंगे। there are a lot many. या आप जो थोड़ा सा स्पेशलाइज्ड एजेंसी रहेगा ना, आप उससे वॉक इन पे भी एक मॉडल बिल्ड कर सकते हैं कि मेरे पास में आपका जो पेशेंट आएगा वो क्लोज होगा कि नहीं होगा वो आपकी जिम्मेदारी है, बिकॉज तो बट आप उसको वॉक इन पे अलाइन कर सकते हो। हम लोग ये एजुकेशन में वॉक इन वाला मॉडल भी करते हैं, मतलब wherein we charge on the walk-ins and not on the leads. Because that's the reason why there are so non-specific leads happening. So the hospital segment is not more into digital like single specialty or small nursing homes. They don't have a great नहीं presence. एक्चुअली इसमें सर कैसे है, जो लीड जनरेशन होने के बाद में देयर नीड्स टू बी अ फिल्टरेशन प्रोसेस ऑफ कॉलिंग, जिसमें आपको इंक्वायरीज आएंगी तो उसको कॉल करके आपको वॉक इन में कन्वर्ट करना पड़ता है। एंड यूजुअली डिजिटल मार्केटिंग या किसी भी मार्केटिंग में एक रेशियो होता है। जैसे डिजिटल मार्केटिंग में अगर मैं बताऊं तो 20% का रेशियो रहेगा आपका। अगर आप 100 इंक्वायरी जनरेट कर रहे हैं तो 20 ही इंक्वायरी आपके पास प्रोस्पेक्ट्स में कन्वर्ट होंगी। जैसे ये जो बताया तो आपका इंक्वायरी लेट से यहाँ पे आपकी 100 रहेंगी, जिसमें से आपके पास में लेट से प्रपोजल स्टेज पे 20 ही पहुंचेंगे, तो 80 फिल्टर होंगे। सो बेसिकली आपकी इंडस्ट्री के रिलेवेंट ये फनल ओवर अ पीरियड ऑफ 2-3 मंथ्स जब आप करेंगे तो बिल्ड हो जाएगा वो। लेट्स से अगर आपने 50,000 स्पेंड किया तो उसमें आपको पता चलेगा कि मेरे को कितनी इंक्वायरीज आई, उसमें इंक्वायरीज में से कितने इंक्वायरीज कन्वर्ट हो रही है। तो आपको आपकी इंडस्ट्री के रिलेवेंट लेट्स से आपका एक IVF बेबी 1 लाख रुपीज का कस्टमर होता है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि 10,000 में आपको एक नया कस्टमर एक्वायर होता है, तो आपको 10,000 कैन बी योर कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। बट ये हर फील्ड के रिलेवेंट, हर इंडस्ट्री के रिलेवेंट अलग अलग हो सकते हैं। बट अगर आप इसको मेजर करना शुरू करेंगे तो आपको मैथमेटिकली डिजिटल मार्केटिंग में पता चल जाएगा कि कितनी इंक्वायरी, कितने रुपए में कितनी इंक्वायरी है, जो उस इंक्वायरी से कितनी कन्वर्ट हो रही है। Thank you. Rupa ma'am has a question. Rupa ma'am, you may proceed with your question, please. Rupa ma'am, you need to unmute yourself. I think Rupa ma'am is not there. Okay, there are no other questions here. Sir, thank you so much for the wonderful session, for sharing with us your experience and making us enrich with the knowledge of digital marketing. Indeed, digital marketing is the need of today's technological world. By this, we can reach anywhere we want, and by assessing it remotely and market ourselves, grow in our business. Today, we got to know about the golden rules of digital marketing: when, where, who, and what. As we have already seen in the first case study of real estate, that how digital marketing helped to generate 24,000 leads, 24 walk-ins, and could be able to sell all the 110 units timely. Rohit sir, I request you to share your presentation for the benefits of member at large. And now I will call, I will invite Rotarian Charu Baheti for vote of thanks. Thank you very much, Megha. It was wonderful. We had a wonderful presentation on digital marketing by Rohit Gupta sir. Excellent presentation. All our Rotarians are from various fields, and we were very eager to know more about digital marketing, especially in this COVID times. You know, we really need this technology, and technological evolution is the need of the hour for everybody. The various aspects, as Rohit, you have mentioned, are the golden rule, the funnel marketing, the e-marketing, and geo-target, and the personal-based model for various industrialists, educationalists, chartered accountants, doctors, architects. All business tycoons need digital marketing.
we in Ishanya, we have wonderful team in leadership of our President Rotarian Pritesh Chandak. We are going to work on every aspect and get new speakers to know more about the world and connect the world and serve the world. So this was our first speaker meet. This was a little brainchild and storming, and we had the output from our very own Rotarian Rohit Chandak. I thank him very much. A very big thank you to our IT professional Rushabh Shah and our club administrator Rotarian Sharat Kauri. I thank all our Rotarians, Rotarians, invited guests to attend this gathering on digital marketing and hearing it so patiently. The queries coming up was solved by Rushabh and Meghna Agrawal, who has conducted this session so well and briefed us so good. I thank all the audience from bottom of my heart to join us on a beautiful Sunday morning. Thank you all very much. We look forward to your continuous support on Speaker Meet. And we have a wonderful team, who is going to give us more sessions into various kind of programs which Ishania needs. So I once again thank our speaker, Rohit Gupta, for a wonderful presentation. I would have never imagined that digital marketing is so important, sir. Thank you again, everybody. Thank you. The meeting is closed for today.